अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। दुर्गापुर से सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के मुताबिक दुर्गापुर शहर सनीचर के रोज जिस घटना का गवाह बना, मटिया बुरुज के इस मोहम्मद नासिर अली का पता अब दुर्गापुर मुफ्त नायब तजदीद कनिंदा है। लेकिन नासिर अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं रुका। मटिया बुरुज के नासिर अली अपने दस्तकारी के लिए बहुत मशहूर थे। सनीचर को दुर्गापुर के कोकोविन पुलिस स्टेशन के तहत राबिंदरपल्ली में एक मंदिर में मां श्यामा ने नासिर के हाथ से हाथ लगाकर एक फॉर्म हासिल किया। नासिर दस्तकारी का काम बखूबी जानते थे और इन्होंने मन की नागवार ताकत से इस टैलेंट को खोने नहीं दिया। और आज मोहम्मद नासिर अली ने रविंदरपल्ली के एक मंदिर में मां की मूर्ति को डिज़ाइन करने, मंदिर के फर्श और मां की मीरा पर अल्पना चढ़ाने की जिम्मेदारी पूरी की। नासिर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत वक्त खो दिया है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। भले ही आज इनके लिए ज़िंदगी रहने का मतलब खो जाने पर भी वो इस हुनर के मीडियम से जिंदा रहना चाहते हैं। না না, এটা তোমার আজকে তুমি নিজেও জানো না তুমি কি করছো। কোনো উল্টো খবর তো হওয়ার কথা না, এটা বার্তা যাবে একটা। বাজার চলছে এখন মার্কেট, ওটা ছাড়ুন, ওখানে রাজনীতি ওটা। তোমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ ছিল? তোমার বিরুদ্ধে বউকে পুড়িয়ে দিতে হবে। বউকে পুড়িয়ে দিই, নিয়ে তারপর কি হলো? তারপর ওই লাইফ সাজা হয়ে গেল কোর্টে ডেকে। কত সাল সেটা? 2004-এ জেলে কেস হয়েছে আর 2006-তে সাজা দিয়েছে। 2006 সাজা দিয়েছে। নিয়ে তুমি এখনো যাবজ্জীবন আসামি? যাবজ্জীবন আসামি আছে, সরকারের উপরে আছে, বিয়ের পরে চলে গেছে। সরকার ছাড়লেই বাড়ি চলে যাবো, কোর্ট শেষ হয়ে গেছে। বাড়ি কোথায় তোমার? মিডিয়া পুলিশ। মেটিয়াপুরে। দুর্গাপুরে কি হবে? মানে দুর্গাপুর সংশোধনাগারে এসেছে? সংসদ করে দিয়েছি। কবে এসছে দুর্গাপুর সংশোধনাগারে? আমি লকডাউনের আগে ছিলাম, 1 মাস থেকে চলে গেছিলাম বাড়ি, আবার 6 মাস পরে আবার চলে এসেছি। আচ্ছা, 1 তারিখে, সামনে 1 তারিখে। আচ্ছা, তো এই যে হাতের কাজ তুমি করতে গিয়ে শিখলে? আমি মিডিয়া পুলিশ গ্যারাজে। হ্যাঁ, গ্যারাজে গ্যারেজে তখনই রঙের কাজ শিখতে? ওইখানে ছোটোবেলাতে রঙের কাজ। ছোটবেলা থেকে তুমি কি এটা করতে? হ্যাঁ। দিয়ে তারপরে তুমি ওখানে মানে 2004 সালে তখন তুমি কাজ করতে? কেস খেয়ে গেলাম। না না, কাজ করতে কি কাজ করতে তখন ওখানে? গাড়ি রং। গাড়ি রং করতে, সঙ্গে এটাও করতে? সব সব করতে? আমার গাড়ির পুরো কমপ্লিট আমি করতে। আচ্ছা, দিয়ে তারপরে এই কাজগুলো কি মানে ছোট থেকে শিখলে কার কাছে? মানে কোন জায়গা থেকে শিখলেন? নিজে নিজে এলো এটা ভাবনাটা? না, আমার উস্তাদ ছিল উসমান। উসমান। ছোটবেলা মানে ছেলেবেলা মানে কত বয়স তুমি যখন কাজে এই ধরনের কাজ শুরু করলে? এই যে আলপনা আঁকা কাজগুলো শুরু করলে তখন বয়স কত তোমার? সেই সময় 8 বছর বয়সে আমি গ্রাজ লাইন চলে গেছি। দার্জিলিং? 8 বছর বয়স থেকে গ্রাজ লাইনে চলে গেছেন কাজে। আচ্ছা, নিয়ে তখন থেকে ওই মানে এই কাজগুলো শুরু হয়েছিল। নিয়ে তারপরে এটা করেই তুমি রুজি রোজগার করতে। তার মাঝেই 2004 সালে এই ঘটনা ঘটে গেল। কি চাইছো এখন? আমিও এবার আমি আর কিছু চাইছি না, সরকার ছাড়লে ছাড়বে, না ছাড়লে ছাড়বে, এইভাবেই চলবে। হ্যাঁ, জীবন সব শেষ হয়ে গেছে, আর একটু বাকি থেকে কি আছে? শেষ হয়ে গেছে। কে আছে ঘরে? সবাই আছে। কে আছে তা? সব আছে, মা বাবা ভাই বোন সবই আছে। এই 6 মাসে আর আসলাম তো বাড়ি থেকে। আচ্ছা, তাদের কাছে তাদের সঙ্গে যদি ইচ্ছা করে না, এমনি যেতে ইচ্ছা করে না যে তাদের সঙ্গে যাবে বা তাদের কাছে গিয়ে থাকবে, এখন যেটা আছে সেটা তো একটা ধরাছোঁয়ার মধ্যে রয়েছে। আর ওই সব দিকে আমি নেই। বহুত এই তো তুমি বাইরে চলে গেছে, বহুত আছে। ছেলে মেয়ে আছে? মেয়ে আছে একটা। মেয়ে আছে? কত বড় মেয়ে? 17 বছর। 17 বছর। পড়াশোনা করছে? এখন কিছু জানিনি কোথায় আছে। তুমি তোমার সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ? না, দারভাঙ্গায় আছে। দারভাঙ্গাতে আছে? বিহারে আছে? একবারে ছাড়া পেলে তবে তো যাবো খোঁজ করতে। এই 10 দিন 5 দিন জন্য বাড়ি যাবো। আর আসতে দারভাঙ্গাতে কার বাড়িতে আছে? মানে কার কাছে আছে? শ্বশুর বাড়িতে আছে। শ্বশুর বাড়িতে আছে। মনে কষ্ট হয় না? কষ্ট হলে কিছু সব ব্যথা বন্ধ করে দিয়েছি। ব্যথার ঘর বন্ধ থাক, আর কাজ করি বেশি, বকে লাভ নেই। কি নাম? এমডি নাসির LLW। কি নাম তোমার? এমডি নাসির LLW। হ্যাঁ, এমডি নাসির। আরেকবার বলো। এমডি নাসির। এমডি নাসির।
বলছি আজকে এক বিরলতম ঘটনা, মানে সম্প্রীতির এক নজির আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি কালী মন্দিরে। কি ঘটনাটা আপনি বলুন। এই যে দেখছেন আমাদের নাসিক মোহাম্মদ রাশিদ, সে হচ্ছে আমাদের মন্দিরে আলপনা দিচ্ছে। আমরা এখানে হচ্ছে যে সর্বধর্ম সমন্বয় যে অবস্থাটা বর্তমান যে পরিস্থিতিতে, আমরা এইটাকেই বিকাশ করতে চাইছি আমাদের মন্দিরের কমিটির পক্ষ থেকে বা আমাদের মন্দিরের তরফ থেকে, যে হচ্ছে যে আমরা সবাইকে নিয়ে যে হচ্ছে যে পুজো করতে পারি, সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখাতে চাই। মানে মানুষ ধর্ম বড় ধর্ম। হ্যাঁ, মানব ধর্ম হচ্ছে বড় ধর্ম, এটাই প্রমাণ করার জন্য। কি নাম আপনার? আপনার দীপ মুখার্জি। হ্যাঁ, दीप मुखर्जी। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीक़ों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। कल्याणेश्वरी में 1200 साल हो चुके हैं। इबादत का माहौल भी बदल गया है। जश्न में इजाफा हुआ है, किताबें कम नहीं हुई हैं। देवी को अब चिराग की मध्यम रोशनी के बजाय बिजली की रोशनी में पूजा जाता है। उबड़ खाबड़ फर्श के बजाय मंदिर के अहाते को संगमरमर की फर्शों से सजाया गया है। बैतुल मुकद्दस की तंग हुरमों में वतांकुलित सर्द हवा, दाखिले की तब्दीली के बावजूद मगरबी बंगाल झारखंड बॉर्डर पर वाक़िया कल्याणेश्वरी मंदिर अब भी पुराने तरीके से पूजा जाता है और ये दावा करता है कि वो इस मंदिर की असल सिवायत है। कल्याणेश्वरी के मंदिर में किसी भी बुत की पूजा नहीं की जाती है। एक बड़ा पत्थर है, इसके नीचे एक पोशीदा गार है। पत्थर के एक कोने में एक गिरत है। बैतुल मुकद्दस में आने वाले अकीदतमंदों का मानना है कि गिरत को छूते ही इन्हें देवी की बरकत मिलेगी, तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी। इस अकीदे के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अकीदतमंद गुज़िश्ता 1200 सालों से मंदिर के अहाते में आ रहे हैं। साल के दूसरे औकात में मंदिर के दरवाजे शाम 6 बजे बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन काली पूजा के दौरान मंदिर के दरवाजे रात भर अकीदतमंदों के लिए खुले रहते हैं। दिलीप बाबू ने मजीद बताया कि पिछले 1200 सालों से पुरुलिया के काशीपुर शाही घर के मंदिर में पूजा जाता है। मंदिर के कदीम मालूमात के मुताबिक केपलिक देवदास चट्टोपाध्याय 12वीं सदी ईस्वी में काली की पूजा लेने आए थे। इस वक्त यहाँ एक घना जंगल था। कहा जाता है कि किंग ब्लॉक सेन केपलिक के अकीदतमंद थे। केपलिक की हिदायत पर अमल करते हुए बिलाल सेन ने एक मंदिर तामीर किया जो अब शिरवानपुर है। देवी श्यामबार की इबादत कई सालों से की जा रही है। अवामी इतलात के मुताबिक एक दिन देवी ने कल्याणेश्वरी के करीब गहरे गड्ढे में पनाह ली। तब से इसी जगह पर देवी की पूजा की जा रही है। मुकामी लोगों के मुताबिक शिरवानपुर में मंदिर के आसपास बस्तियां शुरू हो गईं। शोर मचाने के बाद देवी नाराज हो गई, चुनांचा वो कल्याणेश्वरी एक वीरान जगह आ गई। अब काली पूजा के दिन खसूसी इबादत की जाती है। कार्तिक अमावस्या की तारीख देवी की अकीदत के साथ पूजा की जाती है। मंदिर के चीफ सिवित पादरी दिलीप देवगारिया ने कहा कि इस कोरोना ने मुआशरती फासले को बरकरार रखते हुए नकाब बर्ताव को ज़रूरी बना दिया है। আজকে হ্যাঁ, আজ কালী পুজো আছে। আপনার সবাইকে কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের মায়ের থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা। একটা দেখা যাচ্ছে করোনা বিধি, এটাকে কি কি ব্যবস্থা থাকছে? মাননীয় হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে এবং পশ্চিম সরকারের প্রশাসনের সহযোগিতায় আমরা সমস্ত বিধিটা মেনে চলছি। ওনাদের এতে করে যা করছে কোভিডের ব্যাপারে আমরা ওটা মেনে চলছি। আজ তো কালী পূজা, আজ কি কোনো বিশেষ পুজো অর্চনা? হ্যাঁ, পুজো অর্চনা মানে মায়ের আমান্য যেটা ভোগ হয়, মায়ের লাড্ডু টাড্ডু যেটা বাড়ি থেকে আসবে, এবং আমাদের যেটা খিচুড়ি ভোগ, আরও যে মহাভোগ প্লাস পোলাও, এগুলো রাত্রে সাজবে, কিন্তু সবটা সামান্য পরিমাণে, কম পরিমাণটা কম।
মানে সবটাই সামাজিক দূরত্ব বিধি সব সামাজিক বিধি দূরত্ব মেনেই আমরা করছি সমস্তটা কোভিডের ইয়েতে। আমরাও পাবলিককে বলবো যে আপনারা করুন, নিজে বাঁচুন, অপরকেও বাঁচান। আপনার নাম আর পরিচয়? দিলীপ দেবভূমি। पुरुलिया में 14 नवंबर को पुरुलिया जिला बीजेपी के सेक्रेटरी अब्दुल अलीम अंसारी ने पुरुलिया जिला के रहायशियों और रियासत के लोगों को दिवाली की मुबारकबाद दी है। इन्होंने कोरोना से मुतालिक हुकूमती कवानीन पर अमल करते हुए सबको दिवाली मनाने का मुतालबा किया। इन्होंने सियासी रंग शामिल करते हुए कहा कि हमसाया रियासत मगरबी बंगाल बिहार में पिछले कई दिनों में इंतखाबात पुरअमन तौर पर हुए थे, जिसमें एक भी रूह ज़ाया नहीं हुआ। एनडीए ने वहाँ की अवाम की हिफाजत करते हुए एक मतलक हुकूमत तश्कील दी है। बंगाल के अवाम को इशारे और तृणमूल से आगाह किया गया। हिदायत दी गई कि बंगाल में आइंदा 2021 में होने वाले असेंबली इंतखाबात घबराहट से पाक हों ताकि किसी एक शख्स की जान ना ज़ाया हो। इन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी सियासी जमात को यह हक नहीं है कि वो अवाम के बुनियादी हुकूक छीन लें। रियासत के अवाम महफूज तशद्दुद से पाक माहौल में अपने हक राय दही का इस्तेमाल खुद ब खुद कर सकते हैं। इसके बाद ये देखा जाएगा कि 2021 के इंतखाबात के बाद बंगाल में सियासी बुनियादी ढांचे में तब्दीली का पाबंद है। हमें इसमें कोई शक नहीं है। कहा कि भारतीय जनता पार्टी मगरबी बंगाल में बदइंतजामी को दबाने के लिए वाहिद ऑप्शन है। हमारा नारा सबका साथ साबित है। सारा पुरुलियावासी तथा पश्चिमबंगवासीके शुभ दीपावलिर आगाम शुभेच्छा ও ভালোবাসা জানাই। জেলাবাসীর উদ্দেশ্যে আমি একটাই কথা বলবো যে আপনারা সরকারি নিয়ম বিধি মেনে আপনারা পুজো করুন, ফুর্তি করুন। তার সাথে সাথে আরেকটা কথা বলবো যে কদিন আগে বিহারে নির্বাচন হলো এবং একটা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে, যেখানে কোনো প্রাণহানি হয়নি এবং সেখানে গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছে সেখানের মানুষ এবং একটা নিরপেক্ষ সরকার গঠন করেছে। আমরা সেখানে সরকার গঠন করছি এনডিএ। বাংলাভাষীর উদ্দেশ্যেও একইভাবে বলবো যে বাংলাতেও যেন সন্ত্রাস মুক্ত বাংলা হয়, বাংলার নির্বাচন যেন সন্ত্রাস মুক্ত হয় এবং আগামী দিনে 2021 সালে বাংলাতে পরিবর্তন হবে, বিজেপি সরকার হবে। এ নিয়ে আমাদের কোনো সংশয় নেই বা কোনো সন্দেহ নেই। তাই রাজ্যবাসীকে আরেকবার শুভ দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার। আমার নাম আব্দুল আলী আনসারি, जिला संपादक बीजेपी पुरुलिया। पांडेश्वर असेंबली हलका के तहत लश्कर बांध लाडोहा में पांडेश्वर के एमएलए श्री जतिंदर कुमार तिवारी ने काली पूजा का इफ्तिताह किया। माननीय मुख्यमंत्री बार-बार कुमार तिवारी ने अवाम से खून की हत्या के लिए आगे आने का मुतालबा किया এবং সবকিছু ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে সবকিছু তৈরি করা যাচ্ছে, কিন্তু রক্ত জেনারেট করা হবে বা রক্ত প্রডিউস করা হবে এরকম কোনো সায়েন্টিফিক এখন ডিসকভারি এরকম হয়নি। ন্যাচুরালি আমাদের একজন রক্ত দিয়ে আরেকজনের প্রাণ বাঁচাতে পারবে। সেক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার আবেদন করেছিলেন যে সবাই রক্তদান করুন এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, পুলিশ প্রশাসন, বিভিন্ন আরবান লোকাল বডি, পঞ্চায়েত সবাই এটা করছে। কর্পোরেশন তরফ থেকে আপনি দেখছেন 10 জায়গায় 10টা বুথে 10টা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হচ্ছে এবং এটাকে সামনে রেখে দিদির এই অ্যাপিলকে মর্যাদা দিতে আমরা চাইছি যে এখানে প্রায় 1,500 বোতল রক্ত আমরা রক্ত 1,500, যেখানে 100-200 হলে রক্তদান বলি, কিন্তু 1,500 হয়ে গেলে তো ওটাকে রক্তদান মেলা বলাই চলে। তো আমরা এখানে যত সরকারি ব্লাড ব্যাংক আছে, আসানসোল, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, কলকাতা, যত সরকারি ব্লাড ব্যাংক আছে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। এবং এটা একবার ভালো লাগবে যে আগে আমরা রক্ত দিয়ে আসানসোলের মানুষের প্রাণ বাঁচাতাম, এবার আসানসোলের মানুষ বাঁকুড়ার মানুষের প্রাণ বাঁচাবে, পুরুলিয়ার মানুষের প্রাণ বাঁচাবে, পূর্ব বর্ধমান মানুষের প্রাণ বাঁচাবে, সমগ্র কলকাতা মানুষের প্রাণ বাঁচাবে। তো তার জন্য আসানসোলের জনগণকে বলছি আসুন, সবাই এগিয়ে আসুন এবং সবাই আমরা দেখিয়ে দিই যে শুধু আসানসোল না, আসানসোল বাইরেও অনেকে প্রাণ আমরা বাঁচাতে পারি। খুব ভালো। आसनसोल डिवीजन ने जदीद और स्टेट्स नामी 2 जदीद एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है। आसनसोल में 13 नवंबर 2020 को आसनसोल रेल डिवीजन ने नई भर्तियों की सूरत हाल में अफसरों का दौरा किए बगैर इनकी भर्ती की मौजूदा हैसियत को देखने के लिए 2 एरो और स्टेटस के नाम से एंड्रॉयड एप्लीकेशन तैयार की हैं।
मदद करेंगे और दूसरी तरफ रेलवे मुलाजिमीन को इनकी मुंतकली से मुताल्लिक दरख्वास्त की मौजूदा हैसियत को देखने में भी मदद मिलेगी। डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने श्री सुमित सरकार ने आज 13 नवंबर 2020 डिविजनल पर्सनल ऑफिसर इंचार्ज मोहतरमा ES सिमिक के साथ डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस आसनसोल के नए मीटिंग हॉल में इफ्तिताह किया। पहला एरो आसनसोल मंडल रेल भर्ती बोर्ड, रेल भर्ती सील, RRB RRC और दीगर भर्ती विंडो। ये ऐप नई भर्ती होने की सूरत में दफातर का दौरा किए बगैर इनकी भर्ती की मौजूदा सूरत हाल को देखने में मदद देगी। तमाम रेलवे भर्ती बोर्ड, रेल भर्ती सील, RRB RRC शफकतमंद तकर्रुरी की बुनियाद पर स्पोर्ट्स कोटा, स्काउट्स और गाइड्स कोटा के उम्मीदवार इस ऐप से फ़ायदा उठा सकते हैं। यूनिट के मुंतज़मीन भी भर्ती की हैसियत की निगरानी कर सकेंगे और अपने डैशबोर्ड से तरह तरह की इत्तलाआत तख्लीक कर सकेंगे। दूसरा, स्टेट्स स्मार्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ट्रैकिंग यूटिलिटी सिस्टम। इस ऐप के ज़रिए रेलवे का मुलाजिम मंडल ऑफिस का दौरा किए बगैर मुंतकली की बुनियाद पर या ज़ाती दरख्वास्त पर अपनी मुंतकली की दरख्वास्त की मौजूदा हैसियत इंट्रस्टी या इंट्रास्टी देख सकता है। इसके अलावा ये इंस्टॉलेशन अफसरान और यूनिट के मुंतज़मीन को भी अपने डैशबोर्ड से होने वाली पेशरफ्त की निगरानी में मदद करेगा। इसके ज़रिए पेशरफ्त की निगरानी के लिए मुख्तलिफ रिपोर्ट्स तैयार की जा सकेंगी। इस मौका पर मिस्टर कौशलेंद्र कुमार सीनियर डिविजनल इंजीनियर, कोऑर्डिनेटर मिस्टर मनीष सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, मिस्टर AK दास सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर OP, मिस्टर S बिस्वजीत सीनियर डिविजनल मैकेनिक इंजीनियर, श्री GS मोहंटी सीनियर डिविजनल मटेरियल मैनेजर और दीगर अफसरान और तस्लीम शुदा यूनियनों के नुमाइंदा और मुलाजिमीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। आज 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के मौके पर रविंद्र भवन के पास से पोलो ग्राउंड तक अवेयरनेस के लिए एक वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें कई तंजीमों और आसनसोल पुलिस कमिश्नरेट के लोग शामिल हुए। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड में वाक़या चांदमारी रिक्रिएशन क्लब 23 की जानिब से हफ्ता को यौम चिल्ड्रन डे के मौका पर 100 बच्चों में बैग तकसीम किया गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए साबिक काउंसलर वसीमुल हक ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से ये प्रोग्राम मुख्तसर निगाहों से था। इन्होंने कहा कि मुआशरे की तरक्की के लिए तालीम ज़रूरी है। रियासत के वज़ीर आला ममता बनर्जी बगैर किसी इम्तियाज़ के सबके लिए मुसलसल तरक्याती काम कर रही हैं। आसनसोल में कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर जतिंदर तिवारी वज़ीर आला ममता बनर्जी के हौसला अफजाई से तरक्याती काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का एहतमाम इनके प्रेरता से हुआ है। इस मौका पर अजय सिंह, असाज़ा मनोज यादव, अरविंद सिंह और दीगर मौजूद थे। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। The tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. So be careful with your words. ज़ुबान की हड्डियां नहीं हैं, लेकिन ये दिल को तोड़ने के लिए इतनी मजबूत है, लिहाजा अपने अल्फाज से मोहतात रहें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम।